Hi, this is Babis Dorabji, and you are watching me on Hangama Studio. Bold, beautiful, or bindas. Today on Hangama Studio, let's welcome my favorite Babis Turabji. Thank you so much. What a sweet introduction. How are you? I'm brilliant, happy, living a balanced life. Your house is so beautiful. मतलब यहाँ आके मुझे ऐसे एकदम serene, calm वैसी वाली फीलिंग आ रही है. तो इसके पीछे का क्रेडिट किसको जाता है? Thank you so much. And you won't believe what a coincidence you used the word serene. मेरी जो बिल्डिंग भी है पुणे में, it's called Serene Manor. It's my father's first construction. Because we do believe in like white shades, like because I think this is all thanks to my mom's vibrations. All credit goes to my mother for designing this house. My father, who's a builder, like so we do believe in very like serene kind of architecture. लेकिन आपका कितना हाथ है? कुछ भी हेल्प किया मम्मा को या बस मैं आ जाऊंगी आप कर बैग लेके शिफ्ट हो गए. Well, honestly, absolutely destiny. I mean, I just came here by coincidence. Honestly, this house was already made. But yeah, next time अगर नया घर लेंगे तो मेरा बहुत हाथ रहेगा उसमें. Okay, Babis, what's happening in life? Well, in January, Divaniyat wrapped up. So post that, like just focusing a lot on my events, on my brand campaigns, because touchwood uske baad back to back. As you know, I have a alternate profession of events. So events was going full swing. And फिर अभी brand campaigns भी चल रहे हैं. अभी like 2-3 अच्छे बड़े campaigns किए हैं. Just so like that's going on. There were a couple of offers, but they've not interested me yet. एग्जैक्टली मैं यही बोलने वाली थी कि आपको ऑफर्स ना आ रहे हो ये तो मैं बिल्कुल नहीं मान सकती. वापस क्या मतलब अभी जहन में है कि नहीं अब मुझे यही जॉनर चाहिए या अभी मुझे बहुत सोच समझ के स्क्रिप्ट पिक करना है, तो क्या एस्पेक्ट्स है वापस के जहन में आप? I think, except for my first show, which was Absolute Destiny, where I was just stepping into a new world, like kabhi actor बनने आए भी नहीं थे. That time I just went by faith. But after that, I think it's a responsibility. I take accountability. That's why मैं बहुत choosy रहती हूँ. As you said, yes, मैं सोच समझ के काम करती हूँ. क्योंकि ना मैं जब काम करती हूँ ना, I prefer to see the whole package. So like so there were a few offers. But I didn't think they were, that great. So I didn't take them up. Any one that you want to mention? No. Nothing like that. वैसे तो हमें बहुत सारे offers आते हैं. जब लास्ट शो आपका रैप हुआ उसमें जब आप वापस आए, आपके फैंस वर वेरी हैप्पी टू सी यू ऑन स्क्रीन. उनके साथ वो सेट पर कैसा माहौल होता था, क्या बॉन्ड जब अब द शो हैज़ रैप्ड, कांटेक्ट में है लोगों से, मिसिंग एनीबॉडी फ्रॉम द सेट? Well, yes, we were very disappointed. Such a lovely show like Divaniyat, Shaika Productions, Star Plus, वो इतनी जल्दी आजकल shows wrap up हो रहे हैं. Like, I mean, हम लोग यहाँ start भी नहीं कर रहे हैं और बंद हो जाता है. It's a very big shock for the actors equally. But जितना भी मैंने काम किया, it was really good to be part of the process because the production house is amazing, amazing producers. It was amazing working with my co-stars, like. I had a great time with Vijayendra. He's a great guy. We used to have a lot of fun. I particularly have become very close to Gauri. Gauri Tonk and me are really close. Sheetal ji is there. And I think all of them who I worked with on the show, we had a great bond. Manik sir is there. Manik Bedi, Rajat Bedi's brother. He played my father. Oh my God. He was the best part of the show. He is so cute and so funny. So I had some great times. और set भी Film City में था. इतना beautiful, rich set. So I had some great times. I just wish the show would have lasted longer. Okay, फाबिस, आप ना वो दौर से है जब दीवानियत या मैं कहूँ जुनून डेली सॉप का ऐसे हुआ करता था कि क्या ही कहने. और Ultimate, I would say. Yeah. एंड कोई मतलब ख़त्म ही कोई मतलब ना कि पता ही नहीं था कि एंड कब होगा सीरियल. लेकिन अब जैसे आपने मेंशन किया कि बहुत जल्दी शोज़ ऑफ एयर जा रहे हैं, चैनल्स को, मेकर्स को टीआरपी जो वो चाहते हैं वो नहीं मिल रही है. व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है कि कुछ व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग रॉन्ग? Well, of course, there's a huge difference in the era that we come from.
I think the main thing that is going wrong, I mean, nothing is going wrong, but times have changed. Today we are in the, world of OTT, we are in the world of YouTube, we're in the world of Insta Reels, Instagram, movies, vertical drama, you name it, there are so many options. So obviously audience बटी हुई है ना. And today तो we are in the, era of Gen Zs. तो Gen Zs तो बैठ के सीरियल्स नहीं देखेंगे. हमेशा जो सीरियल्स देखते थे दैट वाज आर ऑल द मम्मीज, द ग्रैंड मदर्स एंड टू टियर सिटीज़. लेकिन वो भी क्या हो रहा है, आज सीरियल हम यहाँ शूट करते हैं और उधर ही हॉटस्टार पे आ जाता है. सो लाइक अगर मैंने आज अभी मिस कर दिया टेलीकास्ट तो मैं हॉटस्टार पे देख लूँगी. सो देर इज़ नो नॉवेल्टी, देर इज़ नो एक्सक्लूसिविटी. और ऑब्वियसली फिर तो TRP बढ़ ही जाएगी ना. एंड यू वोंट बिलीव इट, लाइक व्हेन वी वर स्टार्टिंग द शो दैट टाइम ओनली दे टोल्ड अस दैट वी आर गोइंग टू कीप द एपिसोड्स वेरी शॉर्ट बिकॉज वी आर इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद इंस्टा रील्स. आज मैं देखती हूँ मेरे मॉम, मेरे डैड, एवरीबडी, वी ऑल आर एडिक्टेड टू Insta Reels. So, I mean, like the attention span of people has become very short. That's the problem. एंड अभी ना सीक्वल्स का ज़माना है, बहुत से सीरियल्स का सीक्वल्स आ रहा है, तो बीच में डिमांड भी थी कि फिर से आना चाहिए प्यार की एक कहानी वगैरह वगैरह. तो ये डिमांड कब पूरी होगी फैंस की? क्योंकि उनके साथ साथ इवन आई वांट टू नो बिकॉज आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ एवरी कैरेक्टर इन दैट शो. I really don't know. It's up to the makers because मुझे लगता है उन्होंने 15 सालों में नहीं बनाए. So really we cannot say anything because it's not our ownership. And I think we all are like moved on और सब अपना अपना कर रहे हैं. And honestly मेरा तो character I died also in the end. So पंजी डोबरियाल तो I hope so, but पंजी डोबरियाल तो थी भी नहीं. So I think it was good while it lasted. But when it will be, made and all, I really don't know because 15 साल से fans same ही question पूछ रहे हैं. ओके, जब आपके एरा में 4 दिन 5 दिन के टेलीकास्ट हुआ करते थे, अब इंडस्ट्री हैज़ टोटली शिफ्टेड वापस. फ्राइडे सैटरडे अब टेलीकास्ट टिल संडे चलता है. तो बीइंग एन एक्टर व्हाट यू हैव टू से कितना हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि कुछ अगर हेल्थ इश्यूज भी हो तो भी एक्टर्स नहीं उतना ब्रेक ले पा रहा है, छुट्टी ले पा रहा है, बिकॉज आज शूट किया 22 मिनट पर डे शूट करना है. बीइंग एन एक्टर व्हाट यू हैव टू से, इट इज़ कमेंडेबल फॉर देम, एवरीबॉडी हु इज शूटिंग राइट नाउ फॉर 7 days टेलीकास्ट. Honestly, like hats off when I used to see my leads. I'm like, ये लोग कैसे कर लेते हैं यार. And I was also playing the negative lead, and I also was shooting that much. And okay, I am very mentally strong when I'm in the game. I'm mentally strong, and I'm totally into my work, and I always support the makers and my production house. But honestly, मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. That is the reason अभी मैं थोड़ा easy ही जा रही हूँ, मैं balanced रह रही हूँ. So at the same time, we making money through Instagram, making money through events. See, problem क्या होती है when you don't have money, then you have to do a lot of other work. So I try to see कि at least एक source of income हो और फिर काम भी चलता रहे. बिकॉज मैं भी बहुत ज़्यादा ही बीमार पड़ गई थी. मैंने ये couple of interviews में बोला भी था that I was really suffering. लेकिन इतना करने के बावजूद ऐसा होता है, रिसेंटली देखा गया है काफ़ी कि रातों रात एक्टर्स रिप्लेस कर दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं. कहा जाता है कि एक्टर्स को टैंट्रम्स आ गए हैं, द न्यू कमर्स वगैरह. आप जानते हो, मतलब इतने साल से हो, इतनी मेहनत करने के बाद जब ऐसी चीज़ें होती है, डू यू थिंक ये फेयर है? No, it's definitely not fair. But then the reasons do vary. Obviously, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा attitude throw कर रहा है या seriously cooperate नहीं कर रहा है, then I understand the producer has the whole right. But overall मैंने हमेशा देखा है the contract is very one-sided. Like actors suffer कर रहे हैं, मर भी जाएंगे. कल मैं मर गई, मुझे परसों ही replace कर देंगे. So it's very one-sided, and if you have not done anything much, it's very wrong and very ruthless. ड्यूज भी क्लियर नहीं किए जाते हैं. बहुत से एक्टर्स का हमने देखा. आई वॉज वेरी शॉक्ड. Lot of stories. Thank God I got very lucky. I was with a very good production house. लेकिन yes, मैंने बार बार ये सुना है कि they want concession or they're not giving the dues. And how is that possible when we are serving our terms, we are serving our hours, we are spoiling our health. आपके रोज के टेलीकास्ट पे हम दिखते हैं. So then it's very wrong. The guidelines need to get a little stricter.
ओके, आई नो आपको रियलिटी शोज हमेशा ऑफर होते हैं, हर साल कहा जाता है कि उनको अप्रोच किया गया है, बट वाबिस हर साल वही स्माइल से आई थिंक रिजेक्ट कर देती होंगी. व्हाई आर यू रिजेक्टिंग बिग बॉस वाबिस? Well, because honestly speaking, I've never seen myself for a like as a part for reality shows. I'm here to be an actor. I'm here to be a businesswoman. So मेरी thinking थोड़ी अलग है. एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत डर लगता है यार, बिकॉज बिग बॉस, आई मीन ऑफ कोर्स एज अ व्यूअर इज वन ऑफ द शोज आई एम मोस्ट एडिक्टेड टू, बट वहाँ जाके खेलना, वो सर्कमस्टेंसेज में रहना, लाइक स्पेशली इफ यू आर यू नो यूज टू अ वेरी रूटीन बैलेंस लाइफ विद योर मील्स एंड यू नो वट एवर योर एक्सरसाइज एंड लाइक वहाँ जाके लाइक यू नो यू आर थ्रोन इन टू very uncertain circumstances. Every day there'll be a new challenge. So I'm not sure if I can do it. I'm here to be an actor, and my dream is to be an actress. That's why like I've never been very inclined towards. Of course, the publicity is huge. You do like you know your career gets revived and everything. But I don't know. Eventually, आपको जाके personally game खेला. It's a personality game. ओके, लेकिन ना 1-2 साल मैंने सुना था कि मेकर्स को चाहिए ही वाबिस, यू नो, तो बड़ा अमाउंट भी ऑफर किया जा रहा है वाबिस को. लास्ट ईयर मैंने सुना था एग्जैक्टली कि वाबिस इज यू नो बीइंग ऑफर्ड अ ह्यूज अमाउंट, लेकिन फिर भी उन्होंने रिजेक्ट. तो रियली ऐसा है कुछ? Rubbish. Then that's really called a rumor. Because मुझे नहीं पता where is the money. I want the money. No, like not at all. There's no truth to it at all. अरे लास्ट ईयर भी तो मुझे पागल कर दिया था. मैं दीवानियत कर रही हूँ, मेरे प्रोड्यूसर्स नाराज हो रहे हैं. मैं बोले सर मैं तो जा ही नहीं रही हूँ. लेकिन सो आई डोंट नो, एवरी ईयर दे आर सो कन्विंस्ड, लाइक मेरा नाम सर्कुलेट होता है, दे लाइक वेरी वेरी कन्विंस कि वाबीज जाने वाली. इस साल भी कन्विंस है वाबीज दुराब जी इज गोइंग इन द हाउस, एंड आई हैव नॉट बीन ऑफर्ड एनी मनी और एनीथिंग. देयर इज नो ट्रूथ. ओके, ये साल हुआ था ऑफर बिग बॉस 19? आई वुडंट से ऑफर, बट डेफिनेटली मेरी मीटिंग हुई थी. आई वुड नॉट लाई अबाउट इट. मेरी मीटिंग हुई थी बिग बॉस के साथ, बट देयर वर कपल ऑफ रीजंस फ्रॉम बोथ द साइड्स कि हमने डिसाइड किया नहीं इस साल नहीं. तो ये साल का बिग बॉस इट्स डूइंग वेरी गुड. जो कास्टिंग है लॉट है, पीपल आर रियली लाइकिंग देम. थोड़े से एक यूट्यूबर भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी है, गौरव खन्ना हुज बीन इन द इंडस्ट्री, या बसीर है, आवेज अभी निकले हैं, अमाल मलिक है, शायद आप जानते होंगे. थोड़ा बहुत आई एम श्योर आप फॉलो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे क्या कुछ देखा. कुनिका जी भी है. देख नहीं रही हूँ, लेकिन मैं कुनिका जी को जानती हूँ, अभिषेक बजाज को जानती हूँ, हम तो सेम ग्रुप से ही है. सो yeah, but I don't know her. But yeah, I've been seeing it on Insta here and there, but really not being able to follow too much. थोड़ा सा अगर मैं आपको यू नो जिस्ट बताऊं तो कुनिका जी को घर की वो कहा जाता है, वो कहते हैं ना सबकी माँ है. शुरुआत में ऐसा होता था कि इट वाज कुनिका वर्सेस द एंटायर हाउस. फिर एक हफ्ता ऐसा हुआ गौरव वर्सेस द एंटायर हाउस. गौरव को सलमान ने थोड़ा सा यू कॉल आउट किया कि यू कमिंग फ्रॉम सच अ मैसिव फैन फॉलोइंग, आप बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हैं. गौरव एक्चुअली में दिख ही नहीं रहे, वो कहीं पर भी एपिसोड में भी स्क्रीन टाइम हार्डली उनका 2-5 मिनट का होगा. या सी देखो, कुनिका जी इज नॉट द ओनली वुमन जिसके साथ ही हो रहा है. Whenever there is a strong opinionated woman, then you get a lot of tags. She's so dominating, she's so bossy, she's so this, because we are strong women. And if you know she is being spoken about, हर एपिसोड में उनकी ही चर्चा है, इंस्टा पे उनकी चर्चा. एंड ऑफ कोर्स आई नो कुनिका जी पर्सनली, शी कम्स टू माई इवेंट्स ऑल्सो, एंड शी इज एन एडवोकेट. So obviously she's a lawyer and she knows her game, she knows how to talk, she knows how to fight. So obviously that in fact is the biggest compliment to her कि वो चर्चे में ही है. That means she is definitely doing something right, because in every story somebody or the other is the villain, right? And अगर आप नहीं दिख रहे हो मतलब आप कंटेंट नहीं दे रहे हो, simple as that. अच्छा, अभिषेक को जैसे आपने कहा कि यू नो हिम, तो आई थिंक आई पर्सनली फील ही इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड. एकदम I'm not being able to watch, but Bajaj, तो we are all from the same gang. We have been together for years and years hanging out. अच्छा, उनको ना ऐसे दिखा जाता है कि एकदम पत्थर दिल होगा बंदा, लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है. लेकिन यू नो अभी उनकी और पत्थर दिल नहीं है. अभी उनकी और अशनूर की दोस्ती पर यू नो बहुत बाहर पीपल आर शिपिंग. हैशटैग उनका हैशटैग अभिनूर भी बन गया है. मुझे नहीं पता, आई एम हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, बट या तो क्या हुआ, हमारा पंजाबी मुंडा
He's our Bajaj has always been in our group also, you know, the most fun-loving Punjabi Munda with his Punjabi songs. I saw that also in one of the reels because we are so used to it because हम like 10 साल से दोस्त हैं and we all have been part of the same group. We have gone to Goa together. We've done trips together. So he's a very, very fun person. And हमारा बंदा good looking भी है यार, तो why not? अच्छा, लेकिन दूसरे ग्रुप से ना जो दो ग्रुप्स बन गए, दूसरे ग्रुप से ऐसे व्यूअर्स का कहना है, लोगों का मानना है कि अब अभिषेक को बहुत बुली किया जा रहा है। जो दूसरी ग्रुप है जैसे शहबाज है, अमल है, बसीर है, ज़ीशान कादरी है, तो ये सब कहीं ना कहीं मिलके ये अब कहा जा रहा है कि नहीं, अब अननेसेसरी अब अभिषेक को बुली किया जा रहा है घर के अंदर। अच्छा, आई डोंट नो, आई एम नॉट वाचिंग बुली इन द सेंस इन व्हाट, मतलब अगर वो जैसे डान्यूब एक एरिया है, वहाँ पे अगर वो सोने की अकेले बैठने की कोशिश कर रहे हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो शहबाज और अमाल उठ के आ गए, बसीर उठ के आ गए और अननेसेसरी पोक किया, लेकिन फिर भी अभिषेक ने बहुत संभाला। ही डिड नॉट गो टू दैट एक्सटेंड कि झगड़ा हो जाए। उसके मतलब सपोर्ट के लिए प्रणीत आके बैठ गए कि ठीक है, ज़्यादा कुछ झगड़ा ना हो वगैरह वगैरह। तो दो जो ग्रुप्स बटे हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा अभिषेक को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो फटेगा ही, कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा ही, कुछ ना कुछ मुंह से करेगा ही। बट अभिषेक क्या है वो वैसे तो अपना काम बहुत ज़्यादा जल्दी लूज करने में नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल ही ऐसा कोई इतनी जल्दी नहीं पड़ता है। ही इज़ ओवरऑल अ वेरी काम एंड फन लविंग गाय ओनली। इसलिए मैंने पूछा क्योंकि अभी कल के ही एपिसोड में अमाल और उनकी ऑलमोस्ट हाथापाई हो गई, बिकॉज ही से मैंने एक दो क्लिपिंग्स देखी, बट एज आई टोल्ड यू लाइक व्हाई आई आल्सो गेट स्कैर्ड नाउ टुडे आई एम आल्सो वाबीज इज सो बबली, वाबीज इज सो पॉजिटिव। अभी कल मैं बिग बॉस जाऊंगी, आप बोलोगे वाबीज को क्या हो गया, इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड, झगड़ा कर रही है, गालियां दे रही है। दैट इज part of the house. The house obviously is going to challenge you. You're going to be thrown into circumstances. राशन के लिए लड़ना पड़ता है, भूख लगी है। Exactly. ऐसे हम अपने रियल लाइफ में तो झगड़े नहीं करते। पानी पियो आप आराम से। नहीं, इट्स लाइक ऑब्वियसली हमारे रियल घर में तो हमें ये सब नहीं फेस करना पड़ता। सो इट्स पार्ट एंड पार्सल। लाइक ऑब्वियसली अगर आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होंगे, यू आर गोइंग टू लूज योर कूल, यू आर गोइंग टू बी मूडी, यू आर गोइंग टू बी क्रैंकी। बिकॉज मैं जानती हूँ बजाज को बहुत अच्छे से, लाइक ही इज़ यूजुअली नॉट लाइक दैट, बट ऑब्वियसली अगर आप यू लूजिंग योर कूल, यू बीइंग चैलेंज्ड अगेंस्ट योर सर्कमस्टेंसेस, तो हो जाता है। व्हाट्स द बिग डील? Okay, there's one more reality show, Rise and Fall, जो Amazon, and मैंने देखा कि आप अनाया को भी जानती हैं, वो recently evict भी हो गई। लेकिन I know, I was just with her 2 days back doing dinner. तो अनाया बांगर is my friend. अहाना is a dear friend. अर्जुन है अंदर, कीकू है, काफ़ी दोस्त है। तो अनाया और मैं बेसिकली हमने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स साथ में किया था बैंगलोर में। So from there we really hit it off, and I know her personally. I know her journey, and I really love and respect her. And the best part about Anaya is that she's very soft spoken and very shy that way. When she told me she's going for the show, but still I encouraged her. I said you must go because after this then you'll be flooded with offers. लेकिन मैं जानती हूँ कि अनाया वो टाइप नहीं है जो लड़ पाएगी। अच्छा, कल ही मेरी मुलाकात हुई उनसे हमारे इंटरव्यू में। उन्होंने भी, और हम दोनों का एक्चुअली व्यू यही था कि शी लैक्ड दैट ड्रामा क्वेश्चन जो एक्चुअली रियलिटी शोज में मेकर्स ढूंढते हैं, शायद इसलिए वो बहुत जल्दी। I think it's not about drama. Everybody has a personality type. Like, as I said, she's not like how me. I also might not do drama, but I'm very opinionated. I'm very fiery. So she is very shy. I already know her. And she's a very soft-spoken girl. तो मुझे तो पता ही था that she'll be a little lost, but when she called me and she told me she had the offer, I said amazing, you must go for it, because यहाँ से आपके लिए बहुत दरवाजे खुलेंगे. So everyone must try, obviously. अर्जुन भी है, he is doing good in the show. Arjun is amazing. He's an entertainer. Ahana भी out हो गई ना. She's also a dear friend. So I guess like this is how the format is, and it's part and parcel, right? Do you know anybody else? जैसे धनश्री वर्मा है, अरबाज पटेल है, मनीषा रानी has just entered. She entered. No, I don't know. I know Kiku, of course. And who else? Yeah, I knew these 3-4 people. क्योंकि कीकू जी का ब्रेकडाउन जब भी होता है ना, व्यूअर्स बहुत उदास हो जा रहे हैं उनके साथ। वही उसके रील्स देख के, एंड आई नो बिकॉज मैं कीकू को पर्सनली जानती हूँ, तो आई नो दैट हाउ इट फील्स लाइक, एंड उनके रील देख के 2 दिन मुझे भी बहुत बुरा लगा है।
जब उनको ना डायरेक्टली बोल दिया गया कि फिजिकली तो ये फिट ही नहीं है, तो ही डजंट एग्जैक्टली। लेकिन उसके बाद एक टास्क हुआ अभी कल ही, जहाँ पे ही किल्ड इट एंड अपने लिए उन्होंने कुल्फ़ी ही वन कुल्फ़ी फॉर हिमसेल्फ। तो उन्होंने दिखाया कि नहीं मैं फिजिकली आई थिंक Oh, come on. Like, अभी तो तूने दुनिया देखी है, अभी तो आप बहुत नए हो. I think this is my fight that has been with everybody for years about fat shaming, body shaming. I've always been speaking about body positivity. Nobody in this world has the right to judge you or decide कि oh, this person is this shape and size, so he must be not fit or she must be not fit. And see, he proved it. So it's okay. She is a very young, immature girl. ठीक है, होता है. Okay, there are lot more reality shows apart from Big Boss. झलक है, खतरों के खिलाड़ी है, बहुत सी चीज़ें हैं. या इनके अलावा कोई भाभी आपके जहन में है कि हाँ मैं ये करना ज़रूर पसंद करूँ? Well, I was really in love with the show Traitors also. I think, I would prefer some shows more like that. Like even Rise and Fall was good, but I think which show I had really liked the most was Traitors. And that is like that game Mafia. Like, I really enjoy playing that game. In fact, Anaya और हम सब ने ये game खेली थी when we were in Art of Living also. I really like that game. That's more fun. There'll be season 2 soon. In fact, please consider me, guys. I hope make us सुन रहे हो तो please. Yes, please. Okay, lastly, to all your fans, क्या कहना चाहोगे? आगे क्या प्रोजेक्ट में देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम, जैसे आपने कहा कि इवेंट्स वगैरह, दे वुड रियली वांट टू सी यू आफ्टर दिवानी. See me on screen also. Well, I always just want to tell my fans that keep me in your prayers, and thank you for these beautiful years for making me who I am. I was just this simple small town girl from Pune who never even knew I'd be an actor. And it was not possible without the fans and the love and the support that you guys give me, the DMs that you all flood me with every day. Because वो इतना appreciate करते हैं मेरे Insta posts को भी, मेरे travel vlogs को, मेरे photos. So, that keeps me going. Thank you so much and always keep supporting me. Thank you so much, Babis, for inviting us in such a beautiful house of yours. Thank you. Thank you. बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं.